So I welcome you all to this platform, and today we will be revising the carbon in its compound. Okay, and we will do so by using the mind map. So let's dive into it without beating the bushes. So here we go. So you can see my screen, carbon and its compound can be divided into few subtopics like what is the position of carbon? What are organic compounds? How do we study these organic compounds? Because we have large number of organic compounds. How to name them so that there will be a uniformity? What are isomerism? What are the chemical properties of organic compounds? Okay. Then we have two compounds, ethanol and ethanoic acid. And at last we have soaps and detergent. So let's dive into it with the position of carbon. Yes, sir. So you can see carbon is having atomic number 6. So for first hydrogen, then we have helium, lithium, beryllium, boron, carbon. So carbon is having atomic number 6. So its electronic configuration can be 2, 4. That means in the first orbit, we have 2 electrons, and in the second orbit, we have 4 electrons. So outermost electron is 4, right? Yes, sir. That is why it is neither losing electron nor gaining electron. It is sharing. And when carbon is sharing electron, it is forming a bond which is called covalent bond, right? Yes, sir. Now, if I talk about that in the periodic table, what is its position? So its position is second period and 14th group. Now you can ask her how to calculate this. So the shells, for example, we have over here 2, 4. So how many orbits are there? 2 orbits. Yes, sir. So this shell or orbit will give an idea about the period, that this is in second period because 2 orbits are there. And the valence electron, that means outermost orbit, we have only 4 electrons, right? So if it is 4, then add 10 into it and you will get a group number, that is 14, right? Yes, sir. I hope it is clear. Its position in periodic table. Yes, sir. Carbon is having a spatial property and it show allotropy. Now the point is, sir, what is an allotropy? So allotropy is the property in which the same element exists in different physical form, but they have same chemical properties. Physically, they are having different forms. For example, diamond is hard. We have graphite, right? So the same element when exists in different physical forms, it is called allotropy, and these substances are called allotropes, right? Yes, sir. Okay. Now, in our course, we have 3 allotropes of carbon. 3 allotropes of carbon. First is diamond, second graphite, third Buckminster fullerene. These all are carbon. Now, diamond, we know it is the hardest known substance, hardest. And it is a bad conductor of heat as well. Now the question arises, why it is hard? So you will say, sir, because it has a spatial structure which gives us a unique arrangement of atoms which make it hard. Yes, sir. What is that structure? Tetrahedral, how it looks like? Yes, sir. Right? Like this. You can see over here. So this is carbon in the center and 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. That means all 4 carbons are attached with the single. That means no free electron is there. That is why it is bad conductor. Right? So if they ask you what is tetrahedral structure, so you can draw this. Okay, because this is complex because I have made too many carbons. So this Yes, sir. tetrahedron structure. Right? Okay. So we have understood what is tetrahedron structure, why diamond is hard. Now the question is why it is bad conductor? Because it is not having any free electrons. Because when electron moves, then we say the electricity is flowing. It is a good conductor. Else it is not. So diamond don't have any free electron. I hope it is clear. Yes, sir. Now let us move to
graphite. ठीक है. Now graphite hexagonal rings are there. It is slippery to touch, but it is good conductor. Graphite is the only non-metal which is good conductor. So what are hexagonal rings? So I am showing one figure. I hope it is visible. Yes, sir. You can see this carbon is making a 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is why I'm saying it is hexagonal. Hexa means 6. Yes, sir. Again, this is 6. Now, again, at the base, we have 6, 6. So these 6 carbons, suppose one sheet, second sheet. So one sheet and second sheet are attached with this dotted lines, if you can see. Yes, sir. And due to this dotted lines, they are slipping over one another. Okay. That is why they Yes, are sir. slippery to touch. And these dotted lines shows that they are weak. Now, why they are slippery to touch? Because these hexagonal rings are slip over one another by van der Waals force. So these dotted lines are called van der Waals force. Okay, Yes, sir. right? Okay. As I'm saying that it is, now you can see this carbon, it is attaching with 2 more. So overall 3. So we have 1 more carbon left. That means it has free electron. That is why it is good conductor. So it is the only non-metal which is good conductor. डायमंड के पास तो कुछ बचा ही नहीं, उसने चारों के चारों एंगेज कर लिए, पर इसने केवल 3 ही एंगेज किए, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर था क्योंकि एक फालतू था इस पे. नाउ Yes, लास्ट sir. इज बकमिस्टर फुलरीन व्हिच इज कॉल्ड C60. So you can see this structure. 60 carbons are attached. You can see just like football. Okay. Yes, sir. This has been derived because Buckminster is a architect और उसने एक स्टेडियम बनाया था जिसकी शक्ल कुछ इस टाइप की थी, इसलिए हमने इस आइसोमर का नाम ही रख दिया उस साइड उस आर्किटेक्ट के नाम पे. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. We have studied the allotropes of carbon. So you will get many questions from this topic allotropy, right? Now let us Yes, sir. that carbon is forming large number of compounds. Okay. Why? Because carbon, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कार्बन पे आउटर मोस्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो शेयर. Yes, sir. तो दिस सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन, self combining capacity of carbon is called catenation, due to which it is forming so many, round about more than 5 lakh compounds. Okay, that is why we are studying. And why they are forming? Because its electronic configuration is 2,4, so it have to share electron with carbon. तो हम इसमें जो है हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट? सो बेसिकली व्हाई इट इज फॉर्मिंग, सो you can answer because of catenation. And many a times they have asked you what is catenation. Okay. So if it is a 1 mark, Yes. you can just give catenation. And if they are asking what is catenation, you can explain. Right? Yes, sir. Now, the point is, as our chapter name is that carbon and its compound. Right? Carbon and its compound. So the point is why we are studying it separately. Why we are studying it separately. Why? Because it is forming large number of compounds. Large number of compounds. Yes, sir. सेपरेट ब्रांच पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेना से अराइज हुआ था, जिसका मतलब होता है लाइफ. ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. ठीक, हाइड्रोकार्बन्स यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो एक बार क्वेश्चन आ गया था बोर्ड में, इज CO2 का हाइड्रोकार्बन? नो सर, इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन. ठीक है, Yes, sir. कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स. सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड. ठीक है, Yes, sir. आपको पोजीशन में हमने इतने सारे टॉपिक कवर करे हैं. एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, देन वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू सेकंड पीरियड एंड 14 ग्रुप, देन वी हैव स्टडीड एलोट्रॉपी where we have studied diamond, graphite, Buckminster fullerene. Then we have seen why so many large number of compounds are forming. We have seen catenation. And why we are studying it separately? Because large number of compounds are there and we are studying it in organic chemistry. Now let us talk about organic compounds, right? तो organic compounds जब ढूंढे गए तो उसमें एक फोर्स, एक थ्योरी चल रही थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको दिया था ब्रजीलियस ने.
और उसने कहा था कि जो कार्बन कंपाउंड है वो या तो प्लांट से मिल सकते हैं, एनिमल से, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें कार्बन कंपाउंड मिलेंगे, उनमें लाइफ होती। ठीक। बाद में, और ये थ्योरी काफी साल तक चलती रही, जैसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, लैब में हम कोई कार्बन कंपाउंड नहीं बनाते थे, ठीक है, उस समय तक। पर उसके बाद एक आदमी आया जिसका नाम तो साइंटिस्ट था, फेडरिक वुलर, इसका नाम लिख लेना, जिसने सबसे पहले लैब में सिंथेसाइज किया यूरिया। तब ये डिसाइड हो गया कि भाई यस, वी कैन फॉर्म द कार्बन कंपाउंड इन द लैब ऑल्सो। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो केवल प्लांट से एनिमल से ही मिल सकते हैं। क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। तो आपको वेडरिक फुलर याद रखना है, यूरिया याद रखना है, ब्राजीलियस ने कौन सी थ्योरी दी थी ये याद रखनी है। ठीक है। ओके सर। ओके अब सर। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं भाई, हाइड्रोजन और कार्बन। अब पॉइंट ये था कि सर ये इतने सारे कंपाउंड जो हैं इन्हें हम पढ़ेंगे कैसे? हाउ टू स्टडी दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? तो वी हैव टू क्लासिफाई देम टू मेक इट सिंपलर। तो हम केमिस्ट्री में क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? सो दैट हम उसे आसानी से पढ़ सके। ठीक है। तो हमने यहां यस। पे क्लासिफाई किया कि भाई हम एक सीरीज बनाएंगे जिसको हम होमोलोगस सीरीज बोला करेंगे। और उस होमोलोगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? कि उस होमोलोगस सीरीज को एक केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। ठीक है। जैसे मैं एल्केन की अगर आप बात करूं, तो एल्केन का एक जर्नल फॉर्मूला है CnH2n, है ना? सी यस सर। जैसे आपसे एल्केन की अगर मैं बात करूं, तो एल्केन का मैंने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया कि सी और सी सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये CnH2n से डिनोट होता है। तो यानी किसी भी होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा, उनके जितनी भी सीरीज में मेंबर होंगे उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। जैसे आप एल्केन की अगर बात करो तो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो अगर मैं केवल एक मीथेन पढ़ लूं, मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लूं, तो मुझे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी। सारे कंपाउंड्स को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप कॉपी पे जरा लिखो CH4। ठीक है। ये है मीथेन। दूसरा मेंबर है इसका C2H6। लिख लिया? एक सेकंड सर। CH4 पहला, C2H6 दूसरा। ओके सर। माई स्क्रीन, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ठीक है? अच्छा ये बताओ, CH4 और C2H6 में कितने सी का फर्क आ रहा है? CH4, CH4 है ना, CH4 लिखा आपने? यस सर। जैसे एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? यस। तो इसका पहला मेंबर हो गया CH4, यस सर। क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो अगर n में 1 रखूंगा तो H हो जाएगा 4। इसमें अगर C2 रखता हूं तो 2 × 2 = 4 + 2 6। अगर तीसरा कंपाउंड रखता हूं C3H8, ठीक है? तो मुझे बताओ कि ये और ये कितने C से और कितने H से डिफर कर रहे हैं? क्या सर एक 1 सी C और और 2 H से? यस सर। अच्छा, ये और ये? सर 1 सी और 2 H। तो मैं ये कह सकता हूं कि होमोलोगस सीरीज में जो सक्सेसिव मेंबर है वो CH2 से डिफर करता है, राइट और रॉन्ग? यस सर। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जो मीथेन की होगी वो इथेन की होगी, वही प्रोपेन की होगी। अच्छा, इसमें CH2 से डिफर कर रहा है, मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन 2 है, तो 2 यानी 14U। अगर मैं CH4 का मास निकालूं और C2H6 का मास निकालूं तो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 14U ओनली। ठीक है? क्लियर है? आपने यस कहा सर। जैसे एल्कोहल में भी कर सकते हैं, हाँ, एल्कोहल भी एक होमोलोगस सीरीज थी जिसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+1OH। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसको हम किसी जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका पहला मेंबर क्या हुआ? CH3OH। ठीक है। दूसरा मेंबर क्या होगा? C2H5OH। अच्छा, इन दोनों को देख के बताओ
क्या इसमें भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये हर सीरीज पे लगेगा ये रूल, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन। राइट? ओके सर। ओके चलिए, सर। लेट मी टेक यू टू द माइंड मैप। तो यहां पे हमने ये देखा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है जिसमें कि हम किसी केमिकल फॉर्मूला दे सकते हैं पूरी सीरीज का, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, और सक्सेसिव कंपाउंड जो है CH2 से या 14U से डिफर करता है। क्या आप ये समझ गए पूरा होमोलोगस सीरीज? यस सर। चलिए, अब क्वेश्चन था कि सर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितने में क्लासिफाई हो सकते हैं। तो वो कह रहा है भाई पहले तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ये फर्दर तीन में क्लासिफाई हुए। ये फर्दर तीन में क्लासिफाई हुए। पहला था एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। इनका जो बेसिस था वो बेसिस ये था कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। आपको हमेशा याद रखना है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल कार्बन और कार्बन में होगा, कार्बन हाइड्रोजन में नहीं होगा। कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो एल्केन, जिसको मैं सी सिंगल बॉन्ड सी से दिखा रहा हूं, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन को हमने फर्दर दो भागों में बांटा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। यहां तक आपको क्लियर है? यस सर। ठीक। तो सैचुरेटेड कौन होते हैं? जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा, भाई अगर उस पे सारे पे H लगे हुए हैं, तो अगर मैं किसी मेंबर को लेके आना चाहता हूं तो पहले वो H खाली करेगा। हमेशा याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन में H हटता है, C नहीं हटेगा। H ओके हटा के सर। वो दूसरा मेंबर आएगा। तो एल्केन जो थे वो सैचुरेटेड थे। सैचुरेटेड की पहचान ये है कि वो, अगर आप उसे ठंडे टेम्परेचर पर रखोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्या वो हमेशा लिक्विड रहते हैं या कभी सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बटर है ना, फ्रिज में रखते हैं तो, वरना बाहर रखोगे तो पिघल जाएगा वो। देन वी हैव एल्कीन। एल्कीन मतलब सी और सी डबल में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, एल्काइन जिसमें सी और सी ट्रिपल बॉन्ड है। अभी देखो ये ब्लैक कलर का जो मैंने दिखाया है, ये है कार्बन। इसमें एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड दिखा रहा है, 3D स्ट्रक्चर है इसका। और यहां पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक, तो यस सर। चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक, वो क्या यस सर। दिखाएगा? वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, और ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एनी डाउट अप टिल हियर? नो सर। ऑल क्लियर? तो ये भी यस सर। कैसे दिखाएगा? एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ। ठीक है, अब इसको हम स्टडी करते हैं कि भाई ये जो मैंने बताया आपको, इस पर लेट्स डाइव डीप इनटू इट। सो लेट मी टेक यू टू माय व्हाइट बोर्ड। ओके, सो हियर वी गो। अब यहां पे वो पूछ सकता है आपसे कि मेरे पे एल्केन है, ठीक है, यानी जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2। जब आप इसको नेम करते हो तो इसमें सिफिक्स में एन लग जाता है। ठीक, अभी उसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन होगा? फर्स्ट मेंबर तो एक सी। अब एक सी पे जो जो चार इसके मैंने बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इस टाइप से दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दिखा दो या डॉट में दिखा दो।
ठीक, तो इसने किससे शेयर किया? हाइड्रोजन से। ठीक है। यस सर। और यहां पे इसने ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ब्लैक से दिखा रहा हूं, केवल डिफरेंशिएट करने के लिए आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर। तो ये बॉन्ड बन गया। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है। तो पहला मेंबर जो एल्केन का है वो है CH4। ठीक है, यहां पे तो एक ही सी है, पर अगर दूसरा मेंबर होता तो यहां पे सी और सी कैसे बॉन्ड होते? सिंगल बॉन्ड। ठीक। बाकी जगह इसमें हाइड्रोजन हम लगा देंगे, लाइक दिस। यस सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। C2H6। देखो सी में टू रखो, H2 इंटू एन क्या था? 2 + 2 कितना आ गया? C2 2 × 4 +2 C2H6। यस सर। ठीक। अब एल्कीन में देखना, ये खास बात बता रहा हूं मैं आपको। वो ये कह रहा है एल्कीन में सी और सी डबल बॉन्ड होते हैं, यानी पहला मेंबर जो होगा वो दो कार्बन कंपाउंड का होगा, क्योंकि मुझे तो डबल बॉन्ड चाहिए बेसिक। और डबल बॉन्ड कब लगेगा? जब दो हाइड्रोजन होंगे, दो कार्बन होंगे, सॉरी, है ना? कार्बन और यस कार्बन सर। के बीच में दो बॉन्ड तभी लगेंगे जब दो कार्बन हो, एक अकेला सिंगल कैसे लगा लेगा? तो इसका फर्स्ट मेंबर मीथीन नहीं होता, वो क्या होता है? इथीन। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं एल्काइन की बात करूं, जिसका जर्नल फॉर्मूला CnH2n-2 है, तो इसका भी दूसरा ही मेंबर होता है। अगर n की जगह 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? C2H2। यानी कार्बन और कार्बन में 3 बॉन्ड है। तो इस कार्बन में 1 हैंड बचा, इस कार्बन में 1 हैंड बचा, तो ये H लग गया। तो ये है एल्काइन। तो याद रखने वाली बात क्या है हैशटैग में? कि एल्कीन और एल्काइन के पहले मेंबर दो कार्बन कंपाउंड होते हैं। ओके सर। राइट? आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। सो लेट्स मूव टू द फंक्शनल ग्रुप नाउ, कि भाई और आसानी से कैसे याद किया जा सकता है, क्योंकि इतने 5 लाख से ऊपर कंपाउंड को हमें सीरीज बनाने की तो जरूरत थी, है ना? तो कैसे करेंगे? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ी है, मैं अल्कोहल पे आ रहा हूं। तो वो कहता है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो जब पेरेंट कार्बन पे लगते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे कोर्स में है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, अगर ये पेरेंट कार्बन पे लग जाए, जैसे आप देखो इधर, ये 3D स्ट्रक्चर है इसका, एंड लेट मी शेयर इट। तो ये जो ब्लैक है ये कार्बन है, इससे ये जो रेड है O है, यानी कार्बन से O अटैच है, इस पे H अटैच है। और यहां पे जो R1 R2 R3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? कि ये लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड वहां पे हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+1OH। ठीक है। तो अल्कोहल क्या यस सर। होता है? अल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जिसमें कार्बन जो है डायरेक्ट H से ना जुड़ के OH से जुड़ता है। ठीक है, सो ये एक फंक्शन ग्रुप है, राइट? अल्कोहल। यस सर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में इथेनॉल की सारी स्टडीज हैं। फिर हम आते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो वो है CHO। ठीक। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखूं तो ये देखो आप, ये कार्बन है और इस पे डबल बॉन्ड पे तो लगा हुआ है ऑक्सीजन, और यहां पे लगा हुआ है एक H। ये पहला मेंबर है और यहां पे 3 H लगे हुए हैं। ठीक है। अगर मैं इसको आपको बना के दिखाऊं अपने व्हाइट बोर्ड पे, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। CHO एल्डिहाइड कर रहे हैं हम। तो ये कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड में यहां O लगा हुआ है और यहां H है। ठीक है। अब यहां पे H लग सकता है ना? तो ये यस सर। पहला मेंबर है, तो एल्डिहाइड का पहला मेंबर भी 1C कार्बन कंपाउंड हो सकता है। एल्डिहाइड का पहला मेंबर भी 1 कार्बन कंपाउंड हो सकता है, तो इसके आगे सिफिक्स पे लग जाता है अल। जैसे ये मीथेन है, ठीक है ना? मीथेन का ई हटा के क्या लग जाएगा? अल। तो मीथेन अल। ठीक है।
अब यहां पे अगर दो, इसको कैसे लिखूंगा, HCHO, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अगर दो कार्बन कंपाउंड है, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो दो सी को इथेनल। ठीक है, तो यहां पे आपको यस क्या याद रखना है कि एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर कंपाउंड मीथेनल है। ठीक है, ऐसे ही हमारा आता है कीटोन। भाई कीटोन की पहचान क्या है, सेंटर में सी होगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी सी होगा। सी को मैं R से दिखा रहा हूं, R1, और यहां भी सी के कंपाउंड होंगे R2। यानी ध्यान से सुनना, कीटोन का पहला मेंबर कम से कम 3 कार्बन कंपाउंड का होगा। ठीक है, यानी यस सर CH3C डबल बॉन्ड OCH3, मिथ इथप्रोप प्रोपेन ओन, इसमें सिफिक्स लग जाता है ओन। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन विल बी 3 कार्बन कंपाउंड। ये आपसे MCQ में वो पूछ सकता है, याद रहेगा। यस सर उसके बाद आता है हमारा दूसरा फंक्शन ग्रुप, दैट इज नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें डबल बॉन्ड O भी है और अल्कोहल का OH भी है। ठीक है, इसकी पहचान है। तो यहां पे इस हैंड पे ही केवल कार्बन कंपाउंड लग सकता है, तो इसका फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पहला मेंबर क्या हो जाएगा, यहां तो डबल बॉन्ड वो है ही, यहां पे OH है, तो यहां पे एक H लगा दो। यानी फॉर्मूला क्या हो गया, HC डबल बॉन्ड OH। नाम है इसका मीथेनोइक एसिड। ठीक है, यस सर तो आपको क्या बताया मैंने, अगर मेरा एल्कीन है, ठीक है, एल्काइन है, या कीटोन है, क्या इसके 1C कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं, बोलो। क्या सर एक कार्बन कंपाउंड हो सकता है इसका, एक कार्बन का। यस सर हम्म, यस सर नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे ये मैंने क्या दिखाया, देखो ना, ये कीटोन है, कीटोन में कम से कम 3 कार्बन चाहिए ना मुझे, यस सर क्योंकि जो सेंटर बैठा है इसे 2 कार्बन से अटैच होना है, H नहीं लग सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको जब एल्कीन बताया तो इसमें 2 कार्बन डबल बॉन्ड होने चाहिए, 3 में एल्काइन में 3 कार्बन डबल बॉन्ड होने चाहिए, मतलब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें दो ओके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक ओके है, तो हमें ये पॉइंट याद रखना है। ओके सर एल्कीन एल्कीन एल्काइन में 1 कार्बन कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, कीटोन में 3 कार्बन कंपाउंड पहला मेंबर है, इसमें 2 कार्बन कंपाउंड पहला मेंबर है, इसमें भी 2 कार्बन कंपाउंड पहला मेंबर है। ओके सर लेट अस मूव टू द माइंड मैप। ओके, तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। कीटोन मैंने जैसे आपको दिखाया कि कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, जहां पे हम बीच में ये जो है, ये C है, तो ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और यहां पे आप देख सकते हो ये OH। यस ठीक सर है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया RCOOH, और इसका मेंबर जो है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से। अब देखो ये कार्बन कंपाउंड है, इसमें ये डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, ये रेड वाला O है, और इधर भी O जुड़ा हुआ है, ये H है, व्हाइट व्हाइट इज H, तो OH एंड O। यस तो सर आपसे पूछ सकता है क्या एसिड में H, एल्कोहल का H जुड़ा हुआ है, नहीं, दोनों तरफ O जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, एक डबल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड से, और यहां पे R यानी कोई भी कार्बन के और चेन जुड़ सकती है। यस राइट, तो आज हमने इनको क्लासिफाई किया,
ठीक